وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور اعلی حضرت نے فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور فرمایا، صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ سب کو اراکین اور میری جانب سے اور ہمارے نائب امام صاحب کی جانب سے ماہ ربیع النور کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، کیونکہ وہ مبارک مہینہ تشریف لے آیا ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسا دن ہے کہ جس دن کے صدقے میں سارے دن بنے ہیں، اسی مہینے میں وہ دن ہے اور وہ گھڑی ہے کہ جس گھڑی کے صدقے میں رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا، کیونکہ وہ گھڑی ایسا مقام اس لیے پا گئی کہ اس میں محبوب پروردگار کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ اور اس سال خوشی کی بات اس لیے اور بھی زیادہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے روز یعنی سوموار کو صبح صادق کے وقت ہوئی، اور اس سال وہ تاریخ اور وہ دن اسی دن پڑ رہا ہے جس دن سرکار کی ولادت ہوئی۔ سبحان، آنے والی 16 تاریخ کو بروز پیر یعنی سوموار کو انشاءاللہ جلوس محمدی برآمد ہوگا۔ ماہ مبارک وہ چل رہا ہے جس میں سرکار کی ولادت ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، اس مہینے میں ہمارے نبی تشریف لائے ہیں۔ پوری کائنات اللہ رب العزت نے جس محبوب کے صدقے میں بنائی، وہ محبوب اسی مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ وہ آمنہ کے لال کی جلوہ گری اسی مہینے میں ہوئی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جن، انسان، چرند پرند، زمین آسمان، شجر حجر، شمس قمر، یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے جس محبوب کے صدقے میں بنائی، وہ اسی مبارک مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسی مہینے میں ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، سمجھو اس شعر کو۔ میرے سرکار کی ولادت نہ ہوئی تھی، توجہ ہے آپ حضرات کی، میرے سرکار کی جلوہ گری نہ ہوئی تھی تو اس دنیا کا کیا حال تھا؟ تمام پوری دنیا، تمام انسانیت ظلمت کے گھپ اندھیرے میں زندگی گزار رہی تھی۔ انسان کے اندر انسانیت نام کی چیز ہی موجود نہ تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کے لیے بےتاب بے چین بے قرار رہتے تھے۔ بہت برا حال تھا۔ میں بات کر رہا ہوں زمانہ جاہلیت کی، اور اس زمانے کی جب میرے نبی کی ولادت نہ ہوئی تھی۔ اتنا برا حال تھا کہ بھائی بھائی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے بھائی کا قتل کر دیتا تھا۔ اتنا برا حال تھا
کہ جوانوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا، ان عورتوں کو عیاشی کا کھلونا سمجھا جاتا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تھے تو بیٹا اپنی ماں کو بازار میں لے کر پہنچ جاتا تھا، اپنے باپ کو بازار میں لے کر پہنچ جاتا تھا اور کہتا تھا، لوگوں یہ ماں میری کسی کام کی نہ رہی، باپ اب بوڑھا ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں، اگر کسی کام کے لائق ہے تو خرید لے، میں بیچنے کو تیار ہوں۔ لوگ ماؤں کی بولیاں لگواتے تھے، باپ کو بازار میں جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے۔ ان عورتوں سے لوگ شادی رچاتے تھے، 1 مہینہ کے لیے، 2 مہینہ کے لیے، 3 مہینہ کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور جب من بھر جاتا تھا تو چھوڑ دیتے تھے۔ کوئی طے کر لیتا تھا کہ 1 اولاد پیدا ہو جائے گی تب چھوڑ دوں گا، کوئی طے کر لیتا تھا کہ 1 سال کے بعد چھوڑ دوں گا۔ عیاشی کے تمام اڈوں پر یہ عورتیں وہاں کھلونا بنتی ہوئی نظر آتی تھی، ان کا کوئی بھی انسانیت کی نظر میں مقام نہیں تھا، ان کی کوئی منزل نہیں تھی۔ لوگوں نے ان کا یہ برا حال کر رکھا تھا کہ جب ملک عجم کی تم کو بات بتاؤں، اپنے اس ملک کی بات بتاؤں، یہ حال تھا کہ جب کسی عورت کا خابد انتقال کر جاتا تو لوگ کہتے یہ عورت منحوس ہے، اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، لوگ اس کی چتا کے ساتھ اس کو چتا پر جلا دیا کرتے تھے۔ اگر وہ عورت بار بار منت تواجد کرتی کہ میری جان نہ لی جائے تو لوگ اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے، 6 مہینے یا 1 سال تک اس کو اس میں بند رکھا کرتے تھے، اور ضروریاتی زندگی کے تمام کھانے پینے کے سامان وہی مہیا کرائے جاتے تھے۔ اگر 6 مہینہ یا 1 سال کے بعد وہ زندہ نکل آتی تو لوگ اس کو کسی سواری پر بٹھا کر اس کے منہ پر قالب پوت کر پورے علاقے میں گھماتے تھے اور کہتے تھے، لوگوں یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو نکل گئی ہے، اپنے خاوند کو نکل گئی ہے، اور پورے علاقے میں اس کے چرچے ہوا کرتے تھے، یہ عورت اچھی عورت نہیں ہے، اور پھر اس کی دوسری شادی بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کو قبولتا نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے گھر میں اس کو کوئی رکھنے کے لیے تیار نہ ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے اور باپ کا انتقال ہو جاتا تو لوگ ان بچوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے، وہ ایسے جوان جن کا کوئی وارث نہ ہوتا تھا لوگ ان کو غلام بنا لیا کرتے تھے، 24 گھنٹہ 12 مہینے ان سے خدمت لیا کرتے تھے، بدلے میں مزدوری نہیں ملتی تھی، درہم و دینار کوئی پیسہ نہ ملتا تھا، اور پورے سال ان سے خدمت لی جاتی تھی، ہر طرح کی خدمت لی جاتی تھی، لونڈیاں لوگ رکھا کرتے تھے، ان عورتوں کو عیاشی کا کھلونا سمجھا کرتے تھے۔ برا حال تھا۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تک آپ کی ولادت نہ ہوئی تھی اس ملک عرب کا کیا حال تھا میں آپ کو سناتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بچیوں کو زندہ دبا دیا کرتے تھے، ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے بھی بڑے ظلم کیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی حاضر ہیں، کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری زندگی کے وہ لمحات جب میں ایمان نہ لایا تھا، 2 واقعے بڑے مشہور ہیں جب مجھے یاد آتے ہیں، ایک پر اتنا رونا آتا ہے، اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جی ہی کیوں رہا ہوں، بھلا میری بخشش کیسے ہوگی، میری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ اور ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو میں یاد کر لیتا ہوں تو اتنی ہنسی آتی ہے، اتنی ہنسی آتی ہے کہ خود کو روک نہیں پاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، اجازت دیجئے پہلے کون سا بیان کر دوں؟ سرکار فرماتے ہیں، وہ واقعہ بیان کرو جس پر تم شرمندہ ہو، نادم ہو، جس پر تمہیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब तक आपकी विलादत न हुई थी, मेरी शादी हुई थी और मैं तिजारत की गर्ज से बैरूने मुल्क जा रहा था, मेरी बीवी हामिला थी, मैंने उसको हुक्म दिया था कि मेरे बाद में जब बच्चे की विलादत हो जाए, पैदाइश हो जाए, अगर बच्ची पैदा हो, मेरे लौटने पर उसकी शक्ल मुझको ना दिखाना, जिंदा जाकर जमीन में दबा देना, और अगर बेटे की पैदाइश हो, अच्छे से परवरिश करना, अच्छे से ख्याल करना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब मैं सफर से लौटा था, घर पर पहुंचा था, तो मैंने अपने घर में एक नाजुक सी कली, एक बच्ची देखी थी। मैंने अपनी बीबी से पूछा था, ये बच्ची किसकी है? बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन व जमील है, ये किसकी बच्ची हमारे घर में खेल रही है? तो मेरी बीबी ने जवाब दिया था, है मेरे शौहरे नामीदार, मैं जानती हूं मैंने खता कर दी है। मुल्क अरब का ये निजाम है कि बच्चियों को जिंदा दबा दिया जाता है, पर ये मेरे शिकम से पैदा हुई है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ कि अपनी बच्ची को जिंदा दबा दूं। ये हमारी ही लख्ते जिगर है, ये हमारी ही शहजादी है, ये हमारे ही वतन से पैदा हुई है। शौहर ने जब इतना सुना, सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में अपनी जिंदगी का वाकया सुना रहे हैं, या रसूल अल्लाह, जब आपकी विलादत न हुई थी तब ये वाकया पेश आया था। मैं अपनी बच्ची को उसी वक्त कान पकड़ कर ले गया और जाकर के एक मैदान में मैंने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। मैं गड्ढा खोद रहा था, बच्ची करीब बैठी हुई थी, हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। जब वो गड्ढा तैयार हो गया, मैंने अपनी बच्ची को उस गड्ढे में लिटा दिया, उस पर रेत डालनी शुरू कर दी, तो बच्ची ने हसरत भरी निगाहों से मुझको देखा था और पूछा था, अब्बा मुझे क्यों गड्ढे में दबा रहे हैं? मेरी खता क्या है? मेरा गुनाह क्या है? और मुझको गड्ढे में किस लिए दबाया जा रहा है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको रहम ना आया था, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा जमीन में दबा दिया था। या रसूल अल्लाह, वो दौर था कि जिस दौर में मुल्क अरब में बच्चियों को जमीन में जिंदा दबा दिया जाता था और तो कयाशी का खिलौना समझा जाता था। या रसूल अल्लाह, जब मैं याद करता हूं कि मैंने अपनी बच्ची को जिंदा गड्ढे में दबा दिया था, बहुत रोना आता है, बहुत पछतावा होता है, बहुत शर्मिंदगी होती है, नादिम हो जाता हूं, आंखें नम हो जाती हैं। सरकार फरमाते हैं, दूसरा वाकया बयान करो जिस पर तुम्हें हंसी आती है। वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा और मैं सफर पे गया था, तो उस दौर का ये मामूल था कि जो लोग सफर किया करते थे, मुसाफिर होते थे, वो अपने अपने साथ खुदा रखते थे, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे खुदा थे। लोग सूरज की पूजा करते थे, चांद की पूजा करते थे, पानी की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, इंसानों की पूजा करते थे, जानवरों की पूजा करते थे। या रसूल अल्लाह, वो दौर था कि इंसान जब सुबह को उठता था तो कहता था, ऐ सूरज, रात के अंधेरे से तूने निजात दी है, लिहाजा तू हमारा खुदा है, और उसी की पूजा करने लगता था। जब शाम हो जाती, सूरज डूब जाता था और चांद अपनी चांदनी से जमीन को रोशन करने लगता, तो लोग कहते हैं, चांद, रात की तारीकी में तूने चांदनी दी है। लोग उसकी पूजा करने लगते थे। या रसूल अल्लाह, हर किसी पर अलग अलग किस्म के खुदा थे। औलाद देने वाला खुदा अलग था, माल देने वाला खुदा अलग था, जमीन और जायदाद, मकान और दुकान देने वाला खुदा अलग था, शोहरत और इज्जत देने वाला खुदा अलग था। बहुत सारे खुदा होते थे। तो लोग जब सफर करते थे तो सफर में आसानी पैदा हो जाए, तिजारत में मुनाफा हो जाए, उसका भी एक खुदा लोग बना लिया करते थे और अपनी सवारियों पर रखा करते थे और समझते थे कि इससे हमें बरकत मिलेगी। या रसूल अल्लाह, मैं जब सफर पर जा रहा था, काफिले के लोगों ने एक एक खुदा बना लिया, किसी ने पत्थर का बना लिया, किसी ने मसाले से बना लिया और कहने लगे ये रोजी देने वाला खुदा है। सबने अपने अपने उन झूठे खुदाओं को अपनी सवारियों पर सवार रख लिया। जब मैं सफर की तैयारी करने लगा तो मैंने अपना जब खुदा बनाया, वो खुदा जिसको मैं रोजी देने वाला खुदा समझता था, जो माबूद बातिल था, वो खुदा लंबा चौड़ा बन गया, बहुत वसी अरीज बन गया। जब मैंने सवारी पर लादना चाहा तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई
ऐसी हल्की फुल्की चीज का खुदा बना लेता हूँ जिसका दिन ब दिन वजन भी कम होता रहे, बनाने में भी आसानी रहे और ले जाने में भी आसानी रहे। या रसूल अल्लाह, मैंने जौ का आटा मीन लिया, उसे गीला कर लिया, गीला करने के बाद जैसे लोग रोटी बनाया करते हैं, मैंने वो रोजी देने वाला आटे से खुदा तैयार कर लिया जो झूठा खुदा था और सवारी पर लाद लिया। जब मैं आज़मे सफर था तब मुझे भूख लगी, मुझे लगा कि अब खाने की जरूरत है, सारा सामान जो खाने पीने का था खत्म हो चुका था। मैंने उस आटे को खुदा को सवारी से उतारा, उतारने के बाद उसके हाथ को तोड़ा और उस आटे को गीला किया, गीला करने के बाद उसकी रोटियां बना ली और फिर खा लिया। जब दूसरी बार जरूरत पड़ी दूसरा हाथ उसका तोड़ लिया, फिर रोटियां बना ली, फिर मैंने उससे शिकम शेर हो गया। इसी तरह मैं उस झूठे खुदा को धीरे धीरे अपने पेट में खा गया। या रसूल अल्लाह, जब इस वाक़े को याद करता हूं कि दौरे जहालत कैसा दौर था कि लोग ऐसे ऐसे खुदा बनाते थे जिसको अपने हाथ से तैयार भी करते थे और जरूरत पड़ने पर खा भी लिया करते थे। भला वो कैसे खुदा हो सकते हैं? या रसूल अल्लाह, वो दौर था जो इंसान 10-10 माबूद बातिल अपने साथ रखता था, 50-50 झूठे खुदा बना रखे थे। या रसूल अल्लाह, वो दौर था जब बच्चियों को जिंदा दबा दिया जाता था, औरतों को अय्याशी के अड्डे पर रखा जाता था और वहां की जीनत औरत को समझा जाता था, जुआ आम हुआ करता था, शराब नोशी आम हुआ करती थी। वो दौर था कि जिस दौर में कोई किसी का मददगार नहीं था, भाई भाई के खून का प्यासा हुआ करता था, लोग यतीमों का माल छीन लिया करते थे, जवानों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया जाता था। वो दौर था जब औरतों को उनके खाबिंदों के साथ उनकी चिताओं पर जला दिया जाता था। वो दौर था कि जिस दौर में लोग मोहताजों को मदद ना किया करते थे बल्कि अपने दरवाजे से धुतकार दिया करते थे। उसी दौर में मुल्क अरब में, शहर मक्का में, खानदान कुरैश में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते बनकर, हजरत अब्दुल्ला के शहजादे बनकर, आमिना के लख्त जिगर बनकर वो इनकलाब शहर मक्का में आया है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, सुबह सादिक का वक्त है। एक ऐसा इनकलाब आया है, ऐसा इनकलाब मक्का शरीफ में आया है कि मक्का शरीफ के सुबह के वक्त में बहुत सारे सरदार जमा होने शुरू हुए हैं और एक के बाद एक आपस में महमे गुफ्तगू है और बातें कर रहे हैं। क्या बात है, आज मक्का में कैसा इनकलाब आ गया है, पूरे शहर में खुशबू आ रही है। कोई कह रहा है रात को मैं सोया था, मेरे जानवर लाकर थे, कमजोर थे, बकरियों ने और दूसरे जानवरों ने दूध देना काफी दिन पहले बंद कर दिया था, लेकिन सुबह उठा हूं तो न जाने कैसा इनकलाब है। बकरियों के थन दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे जानवरों के थन भी दूध से पुर नजर आ रहे हैं। कोई मक्के का शख्स कह रहा है मैं जब सुबह उठा हूं, मेरा बाप रात को सोया था, बीमार था, कमजोर था, लागर था, सुबह को उठा है तो जवान नजर आ रहा है, सेहत पा गया है। न जाने कैसे, मैं तो किसी हकीम को नहीं लाया हूं, किसी तबीब को नहीं लाया हूं, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराया है, न जाने वो कैसे सेहत पा गया है। कोई कह रहा है मेरे मकान से सुबह सुबह खुशबू आ रही है, कोई कह रहा है सुबह के वक्त में पहाड़ों की जानिब निकला हूं, वो पहाड़ तो सारे घास नहीं थी बल्कि खुश्क पड़े हुए थे, सब सूखे हुए थे, कोई दरख्त हरा भरा नहीं था, लेकिन मैं देख रहा हूं मक्का के गिरदो नवा में जितने पहाड़ हैं सब सुबह सुबह हरे भरे नजर आ रहे हैं। और वो खजूर के बाग जो मौसम नहीं था, खजूरें देना पहले बंद कर चुके थे, सारे बागों में खजूरों के दरख्त खजूरों से भरे हुए नजर आ रहे हैं और खजूरें पकी हुई नजर आ रही हैं। कोई कह रहा है मेरे घर से खुशबू आ रही है, कहो सुभान अल्लाह। माह रबीउन नूर का महीना चल रहा है, जो तारीख है इसी महीने में मेरे सरकार की आमद हुई है, शहर मक्का है। कोई कहता है मक्के का आदमी गली कूचों से खुशबू आ रही है, कोई कहता है बिस्तरों से खुशबू आ रही है, कोई कहता है लिबासों से खुशबू आ रही है, कोई कहता है फजाओं में खुशबू आ रही है, कोई कहता है हवाओं में
खुशबू आ रही है। ये कैसा माहौल है, बूढ़े जवान हो गए हैं, जानवर दूध देना शुरू कर दिए हैं, पहाड़ों पर घासें लहलाती हुई नजर आ रही है, खजूरों पर बिन मौसम के फल आ गए हैं। ये कैसा इनकलाब है। तो एक सरदार आकर कहने लगा, क्या महबे गुफ्तगू हो, क्या बातें कर रहे हो। तो तमाम मक्के के लोग कहते हैं, हम इस बात की मीटिंग कर रहे हैं, हम इस बात का मशवरा कर रहे हैं, ये कैसा इनकलाब है। शहर मक्का में खुशबू आ रही है, माहौल अजीबो गरीब है, इससे पहले हमने ऐसा महसूस न किया। बूढ़े जवान नजर आ रहे हैं, जवान तो जवान, दरख्तों पर बिन मौसम के खजूरें लटकी हुई नजर आ रही हैं, तमाम पहाड़ हरे भरे नजर आ रहे हैं। देख नहीं रहे हो हवाओं में खुशबुएं महसूस हो रही हैं, देख नहीं रहे हो गली कूचे खुशबुओं से बह गए हैं। ये कैसा इनकलाब है। वो सरदार कहता है, तुम ये बता रहे हो कि गलियों से खुशबू आ रही है, तुम ये बता रहे हो पहाड़ों पर घास हरी भरी लहलहाती हुई नजर आ रही है, तुम ये बता रहे हो खजूरों पे बिन मौसम के फल नजर आ रहे हैं, तुम ये बता रहे हो कि बूढ़े जवान हो गए हैं, तुम ये बता रहे हो जानवरों के थन दूधों से भर गए हैं। मैं जो देख कर आया हूं, अगर मैं बता दूंगा तो तुम यकीन ना कर सकोगे। कहो सुभान अल्लाह। अगर मैं बता दूं तुम यकीन ना कर सकोगे। तमाम मक्के के लोग और उसमें बहुत सारे सरदार भी थे, कहने लगे, बताओ आज कोई बात ऐसी नहीं जिस पर यकीन ना किया जाए, सारी बातें ऐसी नजर आ रही है कि हम भी महसूस कर रहे हैं। तुम बताओ तुमने क्या देखा है। वो मक्के का सरदार कहता है, सुबह सुबह जब मैं अपने बिस्तर से उठा था, मैंने सोचा क्यों न सहने हरम में पहुंच जाऊं, तवाफ़े काबा कर लूं। मैं सहने हरम में पहुंचा, तवाफ़े काबा करने के बाद मस्जिद हराम से बाहर आ रहा था। खानदाने कुरैश के जो सरदार हैं, जिनका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, एक हसीनो जमील खूबसूरत बेटा अपनी बाहों में उठाए हुए हैं, काबतुल्लाह की जानिब जा रहे हैं। जैसे ही मेरे करीब से गुजरे, उस बच्चे के चेहरे पर मेरी नजर पड़ी। मैंने कभी इतना खूबसूरत बच्चा ना देखा था। कहो सुभान अल्लाह। उसके लब इतने खूबसूरत थे कि मैंने जिंदगी में किसी बच्चे के लब इतने खूबसूरत ना देखे। उसकी भौवें लाजवाब थी, उसकी आंखें लाजवाब थी, उसका चेहरा लाजवाब था। ऐसी रंगत थी कि इससे पहले मेरी निगाहों ने इतना खूबसूरत बच्चा ना देखा था। तमाम सरदार कहने लगे, हो सकता है बच्चा खूबसूरत हो सकता है ऐसा बच्चा किसी ने ना देखा हो, लेकिन ये कोई अजीब बात नहीं। वो सरदार कहता है, अजीब ये नहीं कि बच्चा खूबसूरत था, वो तो बात अलग है। अजीब तो ये था कि अब्दुल मुत्तलिब बच्चे को खाना काबा की जानिब लेकर बढ़ रहे थे, तो ऐसा लगता था कि अब्दुल मुत्तलिब भी बढ़ रहे हैं और काबा भी उस बच्चे के इस्तकबाल में बढ़कर आ रहा है। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों शहंशाह का रोजा देखो। कहो सुभान अल्लाह। हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबा बना ही मेरे मुस्तफा के कदम मुबारक की बरकत से। ये काबा काबा ना होता अगर मेरे मुस्तफा दुआ ना करते। तारीख को उठा करके देखो, मेरे आका ने दुआ की तो काबा काबा बना, वरना ये अल्लाह ही का घर था। उससे पहले मेरे सरकार ने 17 या 18 महीने तक फिलिस्तीन की जानिब रुख करके नमाज पढ़ी। मेरे सरकार ने जब रब की बारगाह में दुआएं की, तब रब तबारक व तआला ने फरमाया, क़द नरो तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ए महबूब, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ तवज्जो करना, अनकरीब तुम्हारा काबा खानाए काबा बना दिया जाएगा। मेरे मुस्तफा ने जब रुख घुमा लिया, तमाम सहाबा ने नमाज ही की हालत में, 2 रकात हो चुकी थी, 2 रकात बाकी थी, नमाज ही की हालत में फिलिस्तीन से मक्कतुल मुकर्रमा में खानाए काबा की जानिब रुख घुमा लिया। तमाम सहाबा नमाज की हालत में घूम गए, तमाम सहाबा घूम गए। आज भी आप देख रहे हैं, चाहे कितना बड़ा आलिम हो, फाजिल हो, मुबल्लिग हो, मुजाहिद हो, मुत्तकी हो, कितना भी बड़ा परहेजगार क्यों ना हो, सब नमाज पढ़ रहे हैं खानाए काबा की जानिब। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ रहे हैं खानाए काबा की जानिब, उमर फारूक आजम नमाज पढ़ रहे हैं खानाए काबा
की जानिब उस्मान गनी नमाज पढ़ रहे हैं, खाना काबा की जानिब तमाम जितने भी सहाबा हैं, सिद्दीकीन हो, सालेहीन हो, मुत्तकी हो, औलिया हो, अस्फिया हो, अत्किया हो, सबके सब नमाज पढ़ रहे हैं खाना काबा की जानिब। सहाबा ने नमाज पढ़ी, खाना काबा की जानिब नमाज से फारिग हुए, अर्ज किया रसूल अल्लाह आपने अपना रुख को क्यों घुमा लिया? सरकार फरमाते हैं मेरी ये मर्जी थी कि खाना काबा मुसलमानों का काबा हो जाए, तो रब ने नमाज ही में मेरा काबा बदल दिया। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने काबे को ना कहा, आप घूम गए तो हम घूम गए, इसलिए कि हमारा काबा भी आप है और हमारा किबला भी आप है। ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम कर देगा, कहो सुभान अल्लाह। ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम कर देगा, खुदा भी उसे बेजहन्नम हराम कर देगा। ये माह रबीउन नूर चल रहा है, आज इसकी 2 तारीख है। कितनी तारीख है? 2 तारीख है। 16 तारीख को सितंबर की 16 तारीख को इंशाअल्लाह मोहम्मदी मस्जिद से जुलूस से मोहम्मदी बरामद होगा। आप सब उसमें शिरकत करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? उसमें शिरकत करेंगे। अगले जुमा इंशाअल्लाह इसी मौजू पर बयान होगा। सरकार की आमद हुई, हमारे सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं। ये सरकार का ही सदका है कि हम मस्जिद में बैठे हुए हैं। ये उन्हीं के कदमों की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलत से हमें सरफराज फरमाया है। ये उन्हीं का सदका है कि हमें इज्जत मिली है, शोहरत मिली है, मकानो दुकान औलाद मिली है। उन्हीं का सदका है ये कायनात जगमगाती हुई नजर आ रही है। वो जो न थे तो कुछ न था, शेर समझो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जान है जहान की, जान है तो जहान है। डॉक्टर इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, कहो सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में है अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। सरकार से मोहब्बत नहीं तो कोई इबादत जो आप कर रहे हैं रब कबूल कर सकता है, लेकिन अगर उसके महबूब राजी नहीं तो वो रब भी राजी नहीं होगा। और फिर अल्लाह ने तो कुरान में तुम्हारी फजीलत बयान फरमाई, तुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। इसलिए बेहतरीन नहीं कि तुम नमाज पढ़ते हो, इसलिए बेहतरीन नहीं कि कुरान पढ़ते हो, इसलिए बेहतरीन नहीं मस्जिदें बनाते हो, इसलिए बेहतरीन नहीं मदरसे बनाते हो, दाढ़ियां रखते, इसलिए बेहतरीन हो कि सबसे बेहतरीन नबी के तुम उम्मती। इसलिए बेहतर हो, सबसे अफजल आला अल्लाह के महबूब के तुम उम्मती हो, इसलिए तुम अफजल हो। लेकिन नबी से मोहब्बत सिर्फ इतनी नहीं कि चौराहे पर ऐलान कर दो नबी का दीवाना हो। मोहब्बत का इजहार चौराहे पर नहीं होगा, मोहब्बत का इजहार अमल से होगा। अमल ऐसा हो कि जिंदगी कहीं भी गुजारो तुम्हारे हुलिये से, तुम्हारे अखलाक से, किरदार से लगे ये मुस्तफा का दीवाना है। लगे नहीं लगे, मुस्तफा का दीवाना है। सरकार की आमद का महीना चल रहा है, आज नहीं अगले जुमा इंशाअल्लाह ताला